اس کے بعد ایک مجلس اور ہے. اب یہاں پہ پھر لکھا لائف ہسٹری آف فاطمہ نے کہ شہزادی کم و بیش 8 گھنٹے بھرے دربار میں کھڑی رہی. بس ہزاروں میں پڑھ چکا کیونکہ مجھے اور ذاکرین کا بھی خیال ہے. 8 گھنٹے. کوئی ضروری نہیں ہے میں لمبے چوڑے مسائل پڑھوں. ایک جملہ آپ کے دل کو لگ جائے گریا شروع اور روتے چڑھیے. ایک امی شاعر کہتا ہے مر جائیے یا حسین کہتے کہتے. جب آپ کی زبان سانس آخری نکلے تو لفظ حسین آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. ہم پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں. کم و بیش 8 گھنٹے یہ بی بی بھرے دربار میں کھڑی رہی اور ایک کم سن بچی 6-7 سال کی بار بار دروازے پہ آتی ہے. میری ماں ابھی نہیں آئی, میری ماں ابھی نہیں آئی, میری ماں ابھی نہیں آئی. 7-8 گھنٹے کے بعد شہزادی نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو یہ بچی دوڑی ہوئی آگے گئی, ماں کے قدموں سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کہا اماں ہمارا حق مل گیا. شہزادی کی چیخ نکل گئی بیٹا ہمیں نہ ملا, بس یہ کہنا تھا. اتنے میں شہزادی کے قدموں سے پائچہ ہٹا. زینب نے دیکھا ارے ماں کے قدموں پہ ورم آ گیا. ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کے کہا اماں یہ کیسا ورم ہے, اے اماں یہ کیسا ورم ہے, بس یہ کہنا تھا. ارے شہزادی کی چیخ نکل گئی اے بیٹا مجھے اپنے 8 گھنٹوں کا خیال نہیں ہے, مجھے تو تیرے 72 گھنٹے یاد آ گئے. شام کا بازار منادی ندا دے رہا ہوگا آزئی زینب, آزئی ام کلثوم, آزئی سکینہ. آمادہ ہو گئے آپ کے لیے کرنے کے لیے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے. بس میں نے شہزادی کا تذکرہ کر دیا لیکن مجھے اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے 2 بیٹے ہیں اس نے اپنے بیٹوں کو کبھی بیٹا نہیں کہا. مجھے اس نے ام البنین کے لال کو اپنا بیٹا کہا ہے. شہزادی نے حسن و حسین کو کبھی اپنا بیٹا نہیں کہا بلکہ پلٹ کے کہا یہ تو اپنے نانا کے بچے ہیں, یہ تو اپنے نانا کے بچے ہیں, یہ تو نانا کے بیٹے ہیں. ارے میرا بیٹا تو عباس ہے. روتے ہوئے جائیے گا. قسم خدا کی میں مجلس کو پڑھتا ہوں رونے کے لیے پڑھتا ہوں. ہر آنکھ سے آنسو گر جائے مجلس کامیاب ہے. شہزادے کی ولادت ہوئی, شہزادے کی ولادت ہوئی, فوراً میرے حسین میرے آقا حسین کی آگوش میں آیا. آتے کے ساتھ ہی آنکھیں کھول دی. آنکھوں میں کہا ہوگا آقا میں آ گیا ہوں, ان بازوؤں کو عزیز نہیں رکھوں گا. جب یہ 3.5 سال کا بچہ ہوا تو حسین 3.5 سال کا جب یہ بچہ ہوا تو علی نے اسے اپنے دالو پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا عباس تو کربلا کے لیے ذخیرہ ہے. میں نے وعدہ کیا ہے قسم خدا کی روتے ہوئے جائیے گا عباس تو کربلا کے لیے ہے, عباس تو کربلا کے لیے ہے. ارے جس کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جس کے کانوں میں یہ آواز گونج رہی ہو میں کربلا کے لیے ہوں, وہ کربلا کا کس بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا. ارے میرا آقا میرا مولا علی ابن ملجم کی تلوار سے شہید ہو گیا. ایک مرتبہ یہ بچہ تلوار لے کے آگے بڑھا, حسین نے بازو پکڑا, پلٹ کے کہا عباس تو کربلا کے لیے, عباس تو کربلا کے لیے ہے. ایک مرتبہ عباس نے پلٹ کے کہا آقا مجھے یہ بتائیے ارے جس کے بابا کو نماز میں قتل کر دیا جائے کیا اس کے بیٹے کو جینے کا حق ہے؟ کہا نہیں بیٹا کربلا دور ہے. میرے شیر کربلا دور ہے. میرا مولا علی شہید ہو چکا ہے. عباس کے ذہن میں یہ ہے کربلا آنے دیجئے, کربلا آنے دیجئے. ازادارو اب وہ واقعہ آ گیا کہ امام حسن کو ارے جودہ نے زہر دے دیا. میرے آقا حسن کا کلے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور نیچے تشت میں گرنا شروع ہو گیا. عباس دوڑا ہوا گیا اور جاننے کے بعد تلوار کو اٹھایا. آقا جلدی بتائیے میرے آقا کو زہر کس نے دیا؟ ایک مرتبہ حسین نے بازو پکڑا
दिया, अरे मैं करबला के लिए हूँ। अज़ादारों गुस्लो कफन दिया गया, इमाम हसन का जनाजा उठा, बस जैसे ही जनाजा बाहर निकला तीरों की बारिश होने लगी। अब्बास ने पलट के कहा, अरे जिसका अब्बास जैसा गुलाम मौजूद, अरे उसके होते हुए उसके आका के जनाजे पे तीर बरसाए जाए। तलवार को हाथ में लिया, पलट के कहा हुसैन ने, अब्बास करबला दूर है। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अज़ादारों, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अरे मेरे करबला का अली इरशाद फरमाता है, जब भी मेरे जग पे रोया करो तो ऐसे रोया करो, अरे जैसे तुम्हारा जवान मर गया है। अरे मेरी दादी एक एक चेहरा देती है और दुआएं देती है। जब फर्श आज़ा बिछा दिया जाता है और मोमिनीन और मोमिनात जमा हो जाते हैं और हुसैन के ऊपर गिरिया करते हैं, तो सकीना अपनी पुपी से दरियाफ्त करती है, ए पुपी अम्मा मुझे ये बताइए ये कौन लोग हैं जो गिरिया कर रहे हैं? कहा ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। अज़ादारों कलेजा पकड़ लो, मेरी माँ बहन है, अगर उनकी आगोश में बच्चे हो बच्चों को कलेजे से लगा लो। सकीना पलट के कहती है, काश ये करबला में होते मेरा भैया असगर। असगर ना मारा जाता, मेरा बाबा प्यासा मारा ना जाता। मैंने वादा किया है आप रोते हुए जाएंगे। अब्बास का बाजू पकड़ा, कहा अब्बास करबला दूर है। शहजादा पलट के कहता है, आका ये बतलाइए क्या कभी आपने सुना जनाजे पे तीर बरसाए जाए और मैं मौजूद रहूं? कहा नहीं मेरे शेर, करबला दूर है, करबला दूर है। अज़ादारों, फिर उसके बाद जैसे ही जनाजा वापस आना शुरू हुआ, एक मर्तबा अब्बास ने सर पकड़ के कहा, आका मैं जिंदा रह के क्या करूं? अरे मेरे आका का जनाजा घर में आ गया, मेरे होते हुए मेरे आका का जनाजा घर में आ गया। नहीं अब्बास, करबला दूर है, करबला दूर है। अब्बास ये बार बार कहते चले, अब्बास से कहते चले जा रहे हैं, हुसैन करबला दूर है। अज़ादारों, सन 60 हिजरी का सूरज गुरूब हो गया, 21 हिजरी का सूरज तुलू हो रहा है। अमीर शाम का इंतकाल हो गया, हुसैन को बुलाया गया। बस जैसे ही दरबार में जाने की तैयारी हुई, ज़ैनब दौड़ी हुई गई, अब्बास मेरे शेर। शेर कयामत हो गई। कहा क्या हुआ शहजादी? कहा मेरा माज आया, दरबार में जा रहा है, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। बस अब्बास ने पलट के कहा, शहजादी घबराइए नहीं, आपका गुलाम। अब्बास ने अली अकबर को आवाज दी, कासिम को बुलाया और मोहम्मद को साथ लिया। आका मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, आगे आगे आप चलिएगा, पीछे पीछे आपका गुलाम चलेगा, आगे आगे आप चलिए। वलीद के दरबार में पहुंचे, बस जैसे ही पहुंचे वलीद ने बिठाया, वहां पे बैठे। उसके बाद अमीर शाम के मरने की इत्तला दी गई और एक खत दिया जिसमें बैत तलब की गई थी। हुसैन ने पलट के कहा कि सुनो, न मेरे बाबा ने बैत की थी न मैं बैत करूंगा, दिन के उजाले में फैसला होगा, दिन के उजाले में फैसला होगा। बस ये कहना था। वहां से उठे, बस एक मरतबा मरवान ने पलट के कहा कि वलीद इसी वक्त बैत ले ले। अगर हुसैन ने इस वक्त बैत नहीं ली तो फिर बैत नहीं ले पाएगा। सैयदा के लाल की तिबरियों पे बल पड़ गए, किसकी हिम्मत है जो हुसैन से बैत ले ले। बस ये कहना था। अब्बास पर है ना तलवार लिया हुआ दरबार में दाखिल हो गया। आका आका, अरे किसने भी अदबी की? कहा अब्बास करबला दूर है, अब्बास करबला दूर है, मेरे शेर करबला दूर है। वापस अब्बास को लेकर आ गए। कितनी आंसू रही होगी करबला जाने के लिए, कितनी तमन्ना रही होगी करबला जाने के लिए। तमाम बीबियों ने हल्का कर लिया। आका क्या इरादा है? कहा कि हम अब मदीना छोड़ रहे हैं। ज़ैनब आगे खड़ी हो गई और आने के बाद कहती है, माँ जाए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, भैया मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चलूंगी। एक मरतबा हुसैन ने पलट के कहा, शहजादी शौहर से इजाजत ले लो। बस अज़ादारों 2-3 मिनट की बात और है। कहा शहजादी शौहर से इजाजत
इजाजत ले लो। मैंने तारीख ज़ैनब पढ़ा तो कहीं मुझे ये नहीं मिला। अरे ज़ैनब इस तरीके से अब्दुल्ला के सामने खड़ी हुई हो, सर झुका के खड़ी हो गई। एक मरतबा अब्दुल्ला कांपने लगे, शहजादी मुझसे कोई गलती हो गई? कहा कि नहीं, गलती नहीं हुई है, बस मुझे मेरा माज आया। अरे मदीना छोड़ रहा है अब्दुल्ला, मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगी। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। ए अब्दुल्ला, मैं हुसैन के बगैर एक लम्हा नहीं रह पाऊंगी, मुझे इजाजत दे दो। अब्दुल्ला ने पलट के कहा, ज़ैनब तन्हा ना जाओ और न मोहम्मद को ले जाओ, एक को मेरी तरफ से, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। ज़ैनब खुशी खुशी आ गई, कहा कि भैया मुझे इजाजत मिल गई, अज़ादारों तैयारी हो रही है, तमाम बीवियों को सवार किया जा चुका। अब तारीख ने लिखा कि इतने में अब्बास ने आवाज दी कि सब अपने अपने घर के जंगले बंद कर ले, अरे कोई बाहर ना आए, मैं अली की बेटी को सवार कर रहा हूं। मैं कहूंगा अब्बास, अरे शाम का बाजार, अली की बेटी। अज़ादारों इस तरीके से रोइए, अरे जैसे तुम्हारा जवान मर गया हो। शहजादी एक एक चेहरा देखती है और दुआएं देती है। शहजादी ज़ैनब को सवार कराया, अज़ादारों ये काफिला चला, मदीने से मक्के आ गया। वहां पे कुछ लोग खंजर लिए हुए हुसैन को शहीद करना चाहते थे, अब्बास आगे बढ़ना चाहते थे, यही फैसला हो जाए कि अब्बास करबला दूर है, बस मजलिस खत्म कर रहा हूं। अज़ादारों कहा करबला दूर है। अब हुसैन करबला मक्के से कूफे की जानिब रवाना हुए। रास्ते में हुर का काफिला मिला, हुर आगे बढ़ा, लगा में फरस पे हाथ डाल दिया, कहा कि सैयदा के लाल मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, बस ये सुनना था। हुसैन ने पलट के कहा, अरे तेरी माँ तेरे गम में बैठे, बस ये सुनना था, और ने लगाम को छोड़ दिया। सैयदा के लाल, सैयदा के लाल, मैं आपकी माँ का नाम भी बगैर वुजू के नहीं ले सकता। अब्बास के कानों तक सदा टकराई, वो कौन है? अरे जो मेरे आका की माँ का नाम लेने की बात कर रहा है। एक मरतबा हुसैन ने कहा, अब्बास करबला दूर है, करबला दूर है। हुसैन ने रुख करबला की तरफ कर दिया, करबला की जानिब रवाना हुए। बस जैसे ही सरजमीन करबला पे अब्बास ने कदम रखा, अब्बास ने ठंडी ठंडी सांसें ली। करबला आ गई, करबला आ गई। अरे जिसका मैंने 32 साल इंतजार किया वो करबला आ गई। खेमे लगा दिए गए, फुरात के किनारे खेमे लगा दिए गए। अरे दूसरी मुहर्रम से फौजे, तीसरी मुहर्रम से फौजे यजीद आना शुरू हो गई। आते के साथ ही का अपने खेमे हटा लो, सैयदा का लाल अब्बास, कसम खुदा की मैंने वादा किया है रोते हुए जाइएगा। बस अब्बास आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद आपने जाकिरीन से सुना होगा, खुदाबा से सुना होगा कि अब्बास ने खत खींच दिया। कोई खत नहीं खींचा था, कोई खत नहीं खींचा था, बल्कि आंखों के ऊपर पूरी फौज को रोक लिया, पूरी फौज को रोक लिया। का खबरदार, जो चाहे वहीं खड़ा रहे। अगर जर्रा बराबर किसी के पैर को जुम्बिश हुई तो हवाओं में सर उड़ते हुए नजर आएंगे। जो चाहा था वहीं खड़ा हुआ, अब्बास को देख रहा था। इतने में हुसैन सर झुकाए हुए ज़ैनब के खेमे में आ गए। ए शहजादी, कयामत हो गई, शहजादी कयामत हो गई। कहा कि क्या हुआ? कहा कि मेरे भैया के जनाजे पे तीर बरसाए गए। मैंने कहा करबला दूर है, जनाजा वापस आया। मैंने कहा करबला दूर है, मेरा बाबा मारा गया। मैंने कहा करबला दूर है, मदीना छोड़ा। मैंने कहा करबला दूर है। शहजादी क्या कहूं, करबला आ गई, शहजादी करबला आ गई। अब मुझसे नहीं कहा जाता। एक मरतबा शहजादी ने कहा, फिजा मेरे करीब आ जा। फिजा दौड़ी हुई आई, कहा शहजादी क्या हुक्म है? कहा कि अब्बास से कह दे, अरे ज़ैनब बुला रही है, ज़ैनब बुला रही है। डरे खेमे पे फिजा आई, आवाज दी,
عباس شہزادی بلا رہی ہے، بس یہ کہنا تھا، فوج سے کہا ٹھہرے رہنا ابھی آ رہا ہوں، بس سر جھکائے ہوئے شہزادی کے خیمے میں آئے، کہا شہزادی کیا حکم ہے، کہا خیمے ہٹا لے۔ ہائے ہائے عباس خیمے ہٹا لے، میں یہ سننا تھا۔ عباس نے پلٹ کے کہا شہزادی کربلا آ گئی، شہزادی کربلا آ گئی، میں بابا سے کیا کہوں گا؟ عباس خیمے ہٹا لے، عزادارو شیر نے خیمے ہٹائے، اجازت لی، عباس کے بازو کٹے، پربراق کے کنارے شیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ حسین جنازہ نہ لائے، علم لے کے چلے، اکبر پھوپھی انتظار کر رہی ہے، علم آتے ہوئے دیکھا، سکینہ دوڑی، چچا عباس میں پیاسی ہوں، اے بھیا